کبھی ایک وقت تھا جب رات کے 8 بجتے ہی ہر گھر میں بی بی سی سیربین کی آواز گونجتی تھی۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں سائمہ علی۔ BBC اردو شام 4 بجے کی خبریں۔ بی بی سی پاکستان سے میں ہوں احمد رضا۔ ہم نے اسی آواز کے ساتھ آنکھ کھولی اور اسی سے دنیا کو سمجھنا سیکھا۔ حالت حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا آداب۔ حالت حاضرہ کے پروگرام میں آج آپ صرف امریکہ کو نہیں چین کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، صرف امریکہ کو ہی نہیں امریکہ اور ایران کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، یہی نہیں بلکہ انڈیا اور امریکہ کو بھی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ آواز خاموش ہو گئی۔ بی بی سی اردو شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر اپنی ریڈیو نشریات سیربین آج 31 دسمبر سے بند کر رہا ہے۔ سامع کا سوال: یہ کیوں بند ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہو گئے جناب، یہ کام مت کیجیے۔ مگر ہم نے طے کیا کہ یہ خاموشی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یوں پیدا ہوا زی بی سی سیربین۔ اتوار 31 مئی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج حکومت کے بعض دیگر حلقوں کے مقابلے میں نسبتاً معتدل ہے، اسی لیے اس کے ساتھ کسی حد تک نرمی برتی گئی ہے۔ Their military, we sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے ایران جانے والے گیمبیا کے پرچم بردار ایک جہاز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے متنبع کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی بھی فوجی مداخلت کا جواب دیا جائے گا، جبکہ ایران کے رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے الزام عائد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ تیسری مرتبہ سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں۔ ہم انویژن کو روک چکے ہیں، ہم نے عدم تحفظ کو ختم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بد امنی اور فوجی حملوں کو روکنے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمان میں آبنائے ہرمز کے انتظامی اختیارات سے متعلق بھی ایک منصوبہ زیر غور ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ایک تاریخی قلعے پر قبضے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی زمینی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور کیا سمندر کی تہہ میں ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے؟ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے جدید انڈر واٹر ڈرون پروگرام پر سنیے ایک خصوصی رپورٹ۔ Today we're pleased to announce the first AUKUS Pillar 2 signature project focused on fielding advanced uncrewed undersea vehicles or UUVs. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حامی ماہرین معیشت اب انہی پر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اس بدلتی ہوئی رائے کے پس منظر کا جائزہ بھی لیں گے۔ جب وہی لوگ حکومت کی تنقید کرنے لگے جو کبھی اس کے ساتھ کام کرتے تھے یا ہر صورت اس کی تعریف کرتے تھے تو اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بھارت میں انتخابات پر اٹھنے والے سوالات، کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا انتخابی نظام دباؤ کا شکار ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں آج سیربین میں 2 بنیادی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا انتخابی عمل کے بارے میں ان الزامات سے ملک کے اندر جمہوری اداروں میں بڑھتی ہوئی اعتماد کی کمی اور کمزور ہوتی جمہوریت ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ اور کیا واقعی انڈین جمہوریت ایک ون پارٹی سسٹم یعنی ایک جماعتی نظام کی طرف جا رہی ہے؟ یہ بھی جانیے کہ بھارت میں مقیم غیر قانونی بنگلہ دیشی پناہ گزین اب واپس بنگلہ دیش جانے کے خواہاں کیوں ہیں؟ ایک ہی مہینے میں دوسری مرتبہ مکمل چاند، آج نظر آنے والا نایاب بلو مون کیا ہے اور اسے یہ نام کیوں دیا جاتا ہے؟ پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دے دی۔ سوشل میڈیا پر شائقین کا کہنا ہے کہ پاکستانی سپنرز نے آسٹریلیا کو گوگل میپس کے بغیر ہی گھما دیا۔ اس کے علاوہ سیاست، معیشت، سائنس، کھیل اور دیگر اہم موضوعات پر بھی مزید خبریں، رپورٹس اور تجزیے آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی فوج کو جان بوجھ کر اتنی شدت سے نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا کہ بعض دیگر ریاستی عناصر کو بنایا گیا ہے۔ اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہم نے در حقیقت ایران کی فوج کو کیوں چھوٹ دی ہے اور ان کے ساتھ یہ نرمی کیوں برتی گئی ہے۔
उन्होंने दावा किया कि ईरानी फौज हुकूमत के बाज़ दीगर हलकों के मुकाबले में किसी हद तक मुतदिल है। सदर ट्रंप के मुताबिक अगर किसी मुल्क के तमाम इदारों और अफराद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो इसके नतीजे में वो मुल्क कई नस्लों तक दोबारा तामीर और बहाली के काबिल नहीं रहता। Their military, we sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. They have other people that aren't moderate. We've taken them out. We've taken different forms of leadership out. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that because mistakes have been made in wars where you wipe out everybody and then you have a country that's, for 40 years can never rebuild. दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया कि उसकी अफवाज ने जुमा 29 मई को खलीज ओमान में एक तिजारती जहाज को नकारा बना दिया है। अमरीकी फौज के मुताबिक MV लाइन स्टार नामी यह जहाज बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद से गुजरते हुए ईरान की बंदरगाह की जानिब जा रहा था। सेंटकॉम का कहना है कि जहाज को 20 से ज्यादा मरतबा खबरदार किया गया और बताया गया कि वो अमरीकी बाहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तहम जब जहाज के अमले ने वार्निंग्स को नजरअंदाज किया तो एक अमरीकी तैयारे ने हेलफायर मिसाइल के जरिए जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया, जिसके बाद जहाज अपनी मंजिल की जानिब सफर जारी रखने के काबिल ना रहा। अमरीकी फौज का दावा है कि अब तक 5 तिजारती जहाज तबाह और 116 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है ताकि ईरान के खिलाफ नाफिज करदा बहरी पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ ईरान ने इस इक़दाम को खित्ते के अमन और बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए खतरनाक करार दिया है। ईरान के जंगी इंतजाम में मरकजी हैसियत रखने वाले खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी भी फौजी मुदाखलत या जहाज़ों की आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी के निज़ाम पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त कर दिया है। तेहरान ने तमाम तिजारती जहाज़ों, ऑयल टैंकरों और बहरी कश्तियों को हिदायत की है कि वो सिर्फ मुकर्रर रास्तों का इस्तेमाल करें और सफ़र से कबल पासदाराने इनकलाब की बहरिया से इजाज़त हासिल करें। इसी दौरान बाज़ गैर मुसद्दिका इतलात में दावा किया गया है कि कुछ जहाज ईरान के जेर निगरानी रास्तों से बचते हुए ओमान की समंदरी हदूद से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ओमानी हुकाम ने भी चंद घंटे कबल अपने पानियों में बारूदी सुरंग से मुशाबा एक मुश्तबा शय देखने के बाद मल्लाहों के लिए इंतबाह जारी किया है। उधर ईरान की पार्लियामेंट में भी आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पार्लियामेंट के प्रेसिडियम के रुकन अली रजा सलीमी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी नज़्म नस्क और खुद मुख्तारी के निफाज से मुतल्लक एक मंसूबा जल्द मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उनके मुताबिक इस मंसूबे पर मुआशी, सलामती, नकलो हमल और दीगर मुतालिका इदारों से मुशावरत मुकम्मल की जा चुकी है। अगरचे अभी ये वाज़ेह नहीं कि इस मजवज़ा कानून को पार्लियामेंट में कितनी हमायत हासिल होगी। ताहम ईरानी क़यादत इसे कौमी सलामती का एक बुनियादी मामला करार दे रही है। अली रजा सलीमी ने आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि यह रास्ता ईरान के लिए दर्जनों एटमी हथियारों से भी ज़्यादा कीमती है और इसके इंतज़ाम या खुद मुख्तारी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जबकि पासदाराने इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात के जरिए तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया है। मुज्तबा खामनाई के अपने वालिद की जगह ईरान के तीसरे रहनुमा बनने के बाद ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने मोहसिन रज़ाई को अपना फौजी मुशीर मुकर्रर किया है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के दरमियान वाक़े एक तंग मगर इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है। दुनिया के समंदरी रास्ते से बरामद होने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि यहाँ पैदा होने वाली हर कशीदगी न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की मंडियों और बैनुल-अक़वामी तिजारत पर बराह रास्त असर डालती है। दूसरी जानिब अमेरिका का मौक़िफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ को बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले आलमी इदारे जहाज़ रानी ने भी इस अहम समंदरी रास्ते पर किसी किस्म का टोल या इजाफी फीस आयद करने के ख्याल की हिमायत नहीं की है। सवाल यह है कि क्या आबनाए हुर्मुज़ अब सिर्फ एक बहरी गुजरगाह है या अमेरिका और ईरान के दरमियान ताकत के नए इम्तिहान का मैदान बन चुकी है, और अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ खलीज तक महदूद रहेंगे या पूरी दुनिया की मईशत इसकी कीमत अदा करेगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में आलमी सियासत और आलमी मंडियों की सिमत का तयन करेंगे।
जनूबी लेबनान के पहाड़ों पर वाक़ एक कदीम कला जिसकी तारीख सलीबी जंगों से भी पुरानी समझी जाती है, एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी कशमकश का मरकज़ बन गया है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में वाक़ तारीखी शकीफ या बेओफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। उनके मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दरियाए लितानी अबूर करते हुए इस अहम अस्करी मुकाम तक रसाई हासिल की और वहाँ इसराइली परचम भी लहरा दिया गया है। इसराइल काट्स ने अपने बयान में इस पेशरफ्त को एक अलामती और अस्करी कामयाबी करार देते हुए कहा कि सन 1982 की पहली लेबनान जंग के 44 साल बाद इसराइली फौज एक बार फिर इसी किले में दाखिल हुई है जहां कभी शदीद लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि एक कदीम किला आज की जदीद जंग में इतना अहम क्यों है? इसका जवाब इसके जोग्राफिये में पोशीदा है। बेओफोर्ट किला जनूबी लेबनान की एक बुलंद पहाड़ी चोटी पर वाक़ है जहां से वसी इलाके पर नज़र रखी जा सकती है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक जो कुव्वत इस मुकाम पर कंट्रोल हासिल करती है वो न सिर्फ इर्द गिर्द की वादियों और शाहराओं की निगरानी कर सकती है बल्कि इसराइल और लेबनान की सरहदी पट्टी में होने वाली नकलो हरकत पर भी नज़र रख सकती है। इसी वजह से इसराइली फौज माजी में जनूबी लेबनान पर अपने तकरीबन 20 साल कब्जे के दौरान इस किले को एक अहम फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। सन 2000 में इसराइली इनखला के बाद ये मुकाम दोबारा लेबनानी कंट्रोल में आ गया था। इसराइली वज़ीर दिफा का ये भी कहना है कि जनूबी लेबनान में जारी ज़मीनी कार्रवाइयों का मकसद अल जलील या गलील के इलाके में वाक़ इसराइली बस्तियों का दिफा और शुमाली सरहद को महफूज बनाना है। उनके मुताबिक फौजी ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। ताहम मैदान जंग की तस्वीर शायद इतनी सादा नहीं जितनी सरकारी बयानात में दिखाई देती है। हिजबुल्लाह ने इसराइली दावों को चैलेंज करते हुए कहा है कि वह कई रोज से जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली अफवाज की पेशकदमी रोक रही है। तंजीम के मुताबिक नब्तिया के करीब तराल शर्किया, अल शकीफ और दबैन के अतराफ शदीद झड़पें जारी हैं और इसराइली अफवाज अभी तक इन इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकी। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसके जंगजू मुसलसल मज़ामत कर रहे हैं और इसराइली अफवाज को पेशकदमी से रोकने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारों की तस्वीर में बेओफोर्ट किले के ऊपर इसराइली परचम लहराता दिखाई दिया है। ताहम इस इलाके से फायरिंग की आवाज़ें और धुएं के बादल भी देखे गए हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ये किला सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं बल्कि लेबनान और इसराइल के दरमियान तवील तनाज़े की अलामत भी बन चुका है। सन 1982 की लेबनान जंग हो, इसराइली कब्जे के साल हों या सन 2000 के बाद हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत, बेओफोर्ट किला तकरीबन हर अहम मरहले में एक मरकजी किरदार अदा करता रहा है। अब जबकि इसराइल अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को मज़ीद शुमाल की तरफ बढ़ाने की बात कर रहा है और हिजबुल्लाह मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान कर रही है तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जनूबी लेबनान एक मरतबा फिर एक तवील और खूनरेज़ महाज में तब्दील हो सकता है। सवाल यह है कि क्या बेओफोर्ट किले पर इसराइली परचम का लहराना महज एक अलामती कामयाबी है या ये जनूबी लेबनान में एक बड़े और तवील फौजी ऑपरेशन का आगाज होगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले दिनों में मैदान जंग की सूरत हाल खुद देगी। सामीन, दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबला अब सिर्फ जमीन, फजा या खला तक महदूद नहीं रहा बल्कि समंदर की गहराइयों में भी एक नई दौड़ शुरू होती दिखाई दे रही है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वह समंदर की तह में मौजूद मवासलाती केबल्स, तवानाई की पाइपलाइनों और दीगर हसास इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी के अंदर काम करने वाली जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करेगी। ये मनसूबा तीनों मुमालिक के दिफाई इत्तेहाद यानी ऑकस के तहत शुरू किया जा रहा है जिसे गुज़िश्ता चंद बरसों में मगरबी दुनिया के अहम तरीन सिक्योरिटी माहिदों में शुमार किया जाता है। सिंगापुर में मुनक्कद होने वाले एशिया के बड़े सिक्योरिटी फोरम के मौके पर तीनों मुमालिक के वज़राए दिफा ने इस मंसूबे का ऐलान किया। उनके मुताबिक बगैर अमले के चलने वाली ज़ेरे आब गाड़ियां जिन्हें अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स या UUVs कहा जाता है अगले साल तक तैयार हो सकती हैं। बरतानिया के वजीर दिफा जॉन हेली ने बताया कि लंदन इस मंसूबे में तकरीबन 150 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी करेगा। ताहम मजमूई लागत के बारे में अभी तक कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। This will rapidly give our forces the very most advanced battlefield technologies as together we produce a range of cutting-edge sensors and weapons systems for undersea drones.
ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ऑकस इत्तेहाद को इस बात पर तनकीद का सामना था कि उसके कई मंसूबे कागजों और बयानात तक महदूद हैं और अमली नताइज सामने नहीं आ रहे। इस तनकीद का जवाब देते हुए जॉन हेली ने एतराफ़ किया कि माजी में ऑकस के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा बातें और पेशरफ्त कम हुई, लेकिन अब तीनों हुकूमतें अमली इक़दामात पर तवज्जो दे रही हैं। सन 2021 में कायम होने वाला ऑकस इत्तेहाद दरअसल अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक तवीलुल मुद्दती दिफाई शराकत दारी है, जिसका बुनियादी मकसद जदीद फौजी टेक्नोलॉजी का इश्तराक और बहरुल के खित्ते में ताकत के तवाज़न को बरकरार रखना है। माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे इस मंसूबे में किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसके पस मंज़र में चीन की बढ़ती हुई बहरी सरगर्मियाँ और जनूबी बहराए चीन में जारी तनाज़ात अहम अवामिल हैं। इसी तरह रूस पर भी मगरबी ममालिक कई मरतबा ज़ेर आब इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ खुफिया सरगर्मियों के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी ऑकस के पिलर 2 प्रोग्राम के तहत पहला बड़ा मनसूबा तस्वर की जा रही है। इस प्रोग्राम के जरिए मसनूई ज़हानत, हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर सलाहियतों और ज़ेर आब रोबोटिक्स जैसे शोबों में मुश्तरका तरक्की का हदफ मुकर्रर किया गया है। तीनों ममालिक के मुश्तरका बयान के मुताबिक ये ज़ेर आब ड्रोन्स सिर्फ निगरानी और जासूसी तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि वो समंदर की तह में मौजूद अहम तनसीबात की हिफाजत, लॉजिस्टिक मुआवनत, हमला आवर कार्रवाइयों और हसास मालूमात जमा करने जैसे फ़राइज़ भी अंजाम दे सकेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट के मुताबिक इन ड्रोन्स में जदीद सेंसर्स, खुदकार निज़ाम और ऐसे हथियार नस्ब किए जाएंगे जो मुस्तकबिल की जंगों के तकाज़ों के मुताबिक होंगे। उन्होंने खबरदार किया कि आज की दुनिया की मईशत, इंटरनेट, मालियाती निज़ाम और तवानाई की फ्राहमी का बड़ा हिस्सा इन ज़ेर आब केबल्स और पाइपलाइनों पर इन्हसार करता है जो समंदरों की तह में बिछाई गई हैं। अगर इन तनसीबात को नुकसान पहुँचे तो इसके असरात पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। Today, we're pleased to announce the first AUKUS Pillar 2 signature project, focused on fielding advanced uncrewed undersea vehicles, or UUVs. And I want to thank these two gentlemen for their leadership in ensuring we stayed on track with Pillar 2 and found something critical to all three of our countries. दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक माह पहले बरतानिया के जॉन हेली ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बरतानिया के शुमाली समुद्री इलाकों में ज़ेर आब केबल्स और पाइपलाइनों के करीब मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस है। अगरचे रूस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था, तमाम जब वज़राए दिफा से ये सवाल किया गया कि क्या नया अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम दरअसल रूस और चीन की सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है, तो उन्होंने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया। लेकिन दिफाई माहिरीन का कहना है कि दुनिया जिस तेजी से नई टेक्नोलॉजी पर मबनी मसाबकत की तरफ बढ़ रही है, इसमें समंदर की गहराइयां आने वाले बरसों में उतनी ही अहम हो सकती हैं जितनी कभी आसमान और खला थे। शायद ये वजह है कि अब ताकतवर ममालिक सिर्फ समुद्रों पर नहीं बल्कि समुद्रों के नीचे भी अपनी बर्तरी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इंडिया में वो माहिर मईशत जो पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हामी समझे जाते थे, उनकी मुआशी पॉलिसियों पर अब तनकीद कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि अब ये तनकीद की जा रही है? जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। जब वही लोग हुकूमत की तंकीद करने लगे जो कभी उसके साथ काम करते थे या हर सूरत उसकी तारीफ करते थे, तो उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इंडिया के कुछ जाने माने इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट ने मोदी हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज़ पर खुलकर सवाल उठाए हैं। इनमें ऐसे माहिरीन भी शामिल हैं जो पहले हुकूमत के साथ खड़े थे। सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक सुरजीत भल्ला वज़ीर आज़म की इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के मेंबर रहे। अक्टूबर 2018 में उन्होंने कहा था कि मोदी हुकूमत के पहले 4 साल इंडिया की माइशत के सबसे अच्छे साल रहे। इस ओहदे से हटने के बाद भी वो हुकूमत की पॉलिसीज की तारीफ करते रहे। लेकिन 21 मई को अखबार इंडियन एक्सप्रेस में भल्ला ने एक मजमून लिखा जिसका टाइटल था बीजेपी इलेक्शन जीत रही है लेकिन इकोनॉमी हार रही है। इस मजमून में उन्होंने लिखा, मगरिबी बंगाल में बीजेपी की जीत इंडिया की सियासत में एक तारीखी कारनामा है। अब पार्टी जिस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है उससे आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिर्फ ये है कि 2029 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को और भी बड़ा आवामी मैंडेट हासिल हो। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि इसी दौरान इकोनॉमी को संभालने के मामले में बीजेपी का परफॉर्मेंस इंतहाई खराब नजर आ रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि सूरत हाल और खराब नहीं होगी।
اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں واقعات ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں یا یہ محض اتفاق ہے؟ بھلا کے مطابق اس اکانومک کرائسس کے لیے 4 فیکٹرز ذمہ دار ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، خود حکومت مسئلے کو سمجھتی تو ہے لیکن بحران کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے دوسروں کو الزام دے کر مطمئن ہے۔ دوسرا، میجر انڈسٹری یا بڑی صنعتیں جنہیں اس بحران کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تیسرا، کانگریس پارٹی ہے جو گاندھی خاندان کی قیادت میں اتنی مطمئن اور بے حرکت ہو چکی ہے کہ انڈیا میں بی جے پی کے لیے تقریباً ایک جماعتی جمہوری نظام کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے چوتھا فیکٹر ڈیپ اسٹیٹ کو بتایا، جسے وہ ان تینوں فیکٹرز کے پیچھے کنٹرولنگ پاور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق بحران اس لیے قائم ہے کیونکہ حکومت فقر کے ساتھ مسلسل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انڈین اکانومی دنیا کی بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، حالانکہ ان کے مطابق یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اس مضمون پر بھوٹان کے سینئر صحافی اور دا بھوٹانیز اخبار کے مدیر تینزنگ لامسانگ نے ایکس پر لکھا، میں سرجیت بھلا کو 2014 کے بعد سے بی جے پی حکومت کے سب سے بڑے سپورٹر میں سے ایک مانتا ہوں، ایسے شخص کے طور پر جنہوں نے برسوں تک ٹی وی ڈیبیٹس اور آرٹیکلز کے ذریعے حکومت کے اکنامک پرفارمنس کا دفاع کیا ہے۔ اس لیے جب وہی شخص اب یہ کہنے لگے کہ صورتحال خراب ہے تو اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ حالات واقعی بہت سنگین ہو چکے ہیں۔ بات صرف سرجیت بھلا تک محدود نہیں ہے۔ 2014 سے 2018 تک مودی حکومت کے چیف اکنامک ایڈوائزر اروند سبرامنیم نے بھی 26 مئی کو انڈین ایکسپریس میں ایک مضمون لکھا۔ انہوں نے روپے کی گرتی ہوئی ویلیو کے پس منظر میں سوال اٹھایا کہ جنگ سے پہلے کے 2-3 برسوں میں ترکی کو چھوڑ کر شاید ہی کسی ملک کی کرنسی میں اتنی بڑی گراوٹ آئی ہو جتنا انڈین روپے میں آئی۔ 2022 سے فروری 2026 کے درمیان روپیہ 20% سے زیادہ گر گیا اور اسے بچانے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کی ہر کوشش ناکام رہی۔ روپے کی ویلیو اتنی زیادہ گرنے سے وہ حقیقت سامنے آ گئی ہے جو گورنمنٹ ڈیٹا میں چھپائی جا رہی تھی، سرمایہ کاروں کا انڈین اکانومی پر بھروسہ کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ حکومت نے کچھ ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ اس کا فائدہ چند بڑے کارپوریٹ گھرانوں کو ملے جبکہ دوسرے ڈومیسٹک اور فورن انویسٹرز نقصان میں رہیں۔ اس کے علاوہ وسائل کی تقسیم اور انویسٹمنٹ فلو میں بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کو ترجیح دینا، اپوزیشن اور بزنس لیڈرز کے خلاف ایجنسیز کا استعمال اور ٹیکس قوانین کو زیادہ ایگریسو اور منمانے طریقے سے لاگو کیے جانے کی وجہ سے انویسٹرز کا اعتماد ختم ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے میڈیا ایڈوائزر رہے سنجے بارو نے بھی 24 مئی کو نیو انڈین ایکسپریس میں لکھا کہ 2004 میں اٹل بہاری واجپئی حکومت کی شکست اور لیفٹ پارٹیوں کی حمایت والی کانگریس حکومت کے آنے سے بازاروں اور انویسٹرز میں پالیسی سازی کی سمت کو لے کر فکر اور بے چینی پیدا ہوئی تھی، لیکن اس وقت نو منتخب وزیر اعظم نے بہت جلد انویسٹرز کی تشویش دور کرتے ہوئے اعتماد بحال کر دیا تھا، اور آج کے تناظر میں انہوں نے یہ سوال رکھا کہ 2026 میں انڈین اکانومی کا سائز ابھی صرف $4 ٹریلین سے کچھ زیادہ ہے۔ 1990 سے 2025 کے درمیان انڈین اکانومی نے سالانہ تقریباً 6% کی اوسط رفتار سے ترقی کی۔ سال 2000 سے 2012 کے درمیان یہ اوسط 7% سے زیادہ تھا۔ اگر انڈیا کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو اگلے 2 اشروں میں اوسط سالانہ گروتھ ریٹ تقریباً 8% ہونا چاہیے۔ آخر گزشتہ دہائی میں ایسا کیا ہوا کہ 1990 سے 2010 کے درمیان نظر آنے والی تیز رفتار ترقی کو برقرار نہیں رکھا جا سکا؟ انڈیا میں گزشتہ کچھ عرصے سے اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور ماہرین ملک کے انتخابی عمل پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو ووٹر لسٹ سے نکالا جا رہا ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ اب تک 6.5 کروڑ افراد کو ووٹر لسٹ سے نکالا جا چکا ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ان حالات کا تفصیلی جائزہ پیش کر رہی ہیں عالیہ نازکی۔ اگر آپ انڈین پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں انڈیا کی جمہوریت پر ملک کے اندر خوب بحث چھڑ گئی ہے۔ سیاسی اور ایکیڈیمک ڈسکشنز میں انسٹیٹیوشنلائزڈ ریگنگ اور ووٹر ڈس انفرینچائزمنٹ یعنی ادارہ جاتی دھاندلی اور ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کیے جانے کے الزامات پر بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ الیکشن چوری کرنے کا ہم نے ایک ماڈل پکڑا ہے۔ جہاں الزامات لگ رہے ہیں وہیں حکام کی طرف سے اس طرح کے تمام الزامات کو سختی سے رد بھی کیا جا رہا ہے۔
इंडिया को अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। 1.4 अरब की आबादी वाले इस मुल्क के बारे में अब नाक़दीन खबरदार कर रहे हैं कि वहाँ जमहूरियत डिक्लाइन हो रही है, यानी ज़वाल पजीर है। हुकूमत और उसके सपोर्टर्स इस खदशे को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि इंडिया एक मुतहर्रिक, मजबूत और मुस्तहकम मुल्क और जमहूरियत है जिसे गलत समझा जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि इंडिया में इस वक्त जो हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, छोटी मोटी खामियों और मुश्किलात के बावजूद तकरीबन एक दहाई पहले तक सियासी हलकों में मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस यानी इंतखाबी अमल पर मजमूई तौर पर एतमाद पाया जाता था। मुख्तलिफ नौइयत की सियासी जमातें इंतखाबी नताइज को ब्रॉडली कबूल कर लेती थीं। इसीलिए माजी में इंतखाबी नताइज को चैलेंज किए जाने की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। अब ये तासुर बदलता नजर आ रहा है। इंतखाबात के बारे में सवालात, इंतखाबी अमल के बारे में इल्ज़ामात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, एक्टिविस्ट और मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि मुल्क एक कसीरुल जमात मॉडल से एक वन पार्टी मॉडल की तरफ जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज सहरबीन में 2 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या इंतखाबी अमल के बारे में इन इल्ज़ामात से मुल्क के अंदर जमहूरी इदारों में बढ़ती हुई एतमाद की कमी और कमज़ोर होती जमहूरियत रिफ्लेक्ट होती है? और क्या वाकई इंडियन जमहूरियत एक वन पार्टी सिस्टम यानी एक जमाती निज़ाम की तरफ जा रही है? पिछले दिनों इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबात हुए, जिनमें पहली बार वफाक की हुक्मरान जमात बीजेपी को फतेह हासिल हुई। इन इंतखाबात से पहले मगरबी बंगाल समेत मुल्क की 13 दीगर रियासतों और फेडरल टेरिटरीज में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया, जिसे SIR कहा जाता है। इंडिया के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसका मकसद डुप्लिकेट या पुरानी एंट्रीज को निकाल कर हकीकी वोटर्स को इलेक्टोरल रोल में शामिल करना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इसका मकसद इलेक्टोरल रोल को साफ करना है। SIR की शुरुआत इंडियन रियासत बिहार में की गई और ऑलमोस्ट इमीडिएटली इसके खिलाफ लीगल चैलेंजेस सामने आने लगे। तब से इस अमल से मुतल्लिक तनाज़ा कम होने की जगह बढ़ा ही है। मगरबी बंगाल में SIR के नतीजे में रियासत की 76 मिलियन आबादी के 12% हिस्से को वोटर रोल से हटा दिया गया, यानी 90 लाख नाम जो SIR से पहले वोटर लिस्ट में शामिल थे उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। इन 90 लाख में से 60 लाख से ज़्यादा अफराद के नाम ये कहकर फहरिस्तों से निकाल दिए गए कि या तो वो मर चुके हैं या फिर मुस्तकिल तौर पर गैर हाजिर हैं। इलेक्शन होने तक तकरीबन 27 लाख ऐसे वोटर्स का स्टेटस गैर वाज़ेह था जिन्होंने SIR को चैलेंज किया था। इसी तरह बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले इंतखाबात से पहले की जाने वाली SIR में 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया था। नाक़दीन का कहना है कि इन इक़दामात के असरात गैर मुतनासिब तौर पर अक़लियतों, तारिकीन वतन और गरीब वोटर्स पर पड़ रहे हैं। इस तरह की मिसालें भी हैं कि वोटर्स को पोलिंग के रोज़ जाकर मालूम हुआ कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। कई ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं जहां जिंदा शहरियों को मुर्दा वोटर करार देकर इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज कर दिया गया और ऐसे कई वोटर्स ने इस सिलसिले में अदालत से रुजू भी किया है। देखिए, वैसे तो इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करना इंतखाबी अमल का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा है। दुनिया की हर जमहूरियत में ये बाकायदगी से होता है, तो इंडिया में ये इस कदर मुतनाज़ क्यों हो गया है? मैंने इसी बारे में दिल्ली में नामनिगार शकील अख्तर से पूछा कि इस बारे में इंडिया में क्या कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं। आलिया, एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि वोटर लिस्ट का रिवीजन या SIR ज़रूरी होता है, लेकिन उसके तरीक़ेकार पर उन्होंने सवालात किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों अपने एक अहम फैसले में SIR के जवाज़ और शहरियत और नामों के डिलीशन के अमल को सही करार दिया। मैंने इलेक्शन के एक एक्सपर्ट योगेंद्र यादव से पूछा कि इस बार वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हुआ है वो पहले से किस तरह अलग है। पुरानी वोटर लिस्ट को कूड़ेदान में डाल के बिल्कुल नए तरीके से एक सफ़ेद कागज पे वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। ये ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है। दूसरी बात जो नई है वो ये कि आज तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट पे पहले से था तो आपसे ना कोई सबूत मांगा जाता है, ना कुछ किया जाता है। अगर आप नए वोटर बनना चाहते हैं तो आपसे कहा जाता है एप्लीकेशन दो। मगर SIR में हर शख्स से जिसका नाम भले ही पिछले 50 साल से वोटर लिस्ट में है उसको कहा जाता है आप फॉर्म भरिए, फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम गायब, क्योंकि हम तो नए सिरे से लिख रहे हैं। आपका ही अपना अंदाज़ा है कि जितना भी अब तक SIR हुआ है जिन स्टेट्स में, उसमें कम से कम 6 करोड़ लोगों के नाम
ہٹائے جا چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ہٹائے گئے ہیں اور کتنے پورا ہونے پہ کتنے ہٹ سکتے ہیں؟ اندازہ نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کے خود کے دیے گئے فگرز ہیں. فگر کیا ہے؟ اب تک جن 14 راجیوں میں ایس آئی آر یا ایس آر ہو چکا ہے ان میں ملا کے پچھلی بار کی ووٹر لسٹ کے مقابلے میں نیٹ 6.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے نام کٹ چکے ہیں. اور ابھی تک ہندوستان کا صرف 60% کور ہوا ہے. باقی 40% میں ابھی شروع ہو رہا ہے. مطلب جب تک یہ ایس آئی آر کی ایکسرسائز پوری ہوگی لگ بھگ 10 کروڑ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے کٹ چکے ہوں گے. 10 کروڑ. اتنے بڑے ڈیلیشن کا مقصد کیا ہے؟ بنگال کی آبادی میں 27% مسلمان ہیں. بنگال کی ووٹر لسٹ میں 27% تھے. پہلے فیز میں جو ڈیلیشن ہوا اس میں 26% مسلمانوں کا ڈیلیشن ہوا. ٹھیک ہے, ایسا ایک آدھ پرسنٹ اوپر نیچے چلتا ہے. جو سیکنڈ فیز 27 لاکھ جو ڈیلیشن ہوئے ہیں اس میں سے 64% مسلمز ہیں. جس کانسٹیچوئنسی میں صرف 25% مسلمان بستے ہیں وہاں ڈیلیشن کی لسٹ میں 95% مسلمان ہیں. جہاں کنٹروورسی کی ایک بڑی وجہ ووٹر لسٹس اور الیکٹورل رولز بنی ہوئی ہیں, وہیں اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی فہرستوں میں دوہرے ووٹرز, جعلی پتے اور بڑی تعداد میں مشکوک انٹریز کے الزامات بھی عائد کیے ہیں. اور اب ہم بات صرف مغربی بنگال کے ریسنٹ الیکشن کی نہیں کر رہے. پچھلے سال اگست میں حزب اختلاف کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے الزام لگایا تھا کہ ان کی جماعت 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں ووٹوں میں مبینہ دھاندلی کی وجہ سے درجنوں سیٹ سے محروم رہی. راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹر فہرستوں میں رد و بدل کر کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. راہل گاندھی کے مطابق مبینہ دھاندلی کے لیے مختلف حربے اختیار کیے گئے جن میں ووٹر فہرستوں میں تبدیلیاں اور انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے والے دیگر اقدامات شامل تھے. راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ بعض افراد نے ایک سے زیادہ مرتبہ ووٹ ڈالے جبکہ کئی ایسے معاملات بھی سامنے آئے جہاں ایک ہی گھر کے پتے پر بڑی تعداد میں ووٹرز رجسٹر تھے یا پھر مشتبہ اور بظاہر جعلی پتے استعمال کیے گئے. راہل گاندھی کے مطابق ایک حلقے میں 1 لاکھ سے زیادہ جعلی ووٹ ڈالے گئے جن کی بڑی وجہ دوہرے ووٹرز تھے. راہل گاندھی نے اس وقت الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈیجیٹل ووٹر فہرستیں جاری کرے تاکہ عوام اور سیاسی جماعتیں ان کا آزادانہ جائزہ لے سکیں. انڈیا کی الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی کے الزامات کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دیا اور انڈیا کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. گیانیش کمار نے حزب اختلاف پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے انڈیا کے ووٹرز کو نشانہ بنانے کے ایک ذریعے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ بلا امتیاز تمام ووٹرز کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا. چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا کہ دھاندلی کے الزامات عائد کرنے والوں کو یا تو حلف کے ساتھ ثبوت پیش کرنا ہوں گے یا پھر قوم سے معافی مانگنی ہوگی. ان کے الفاظ میں یا تو حلف نامہ جمع کرایا جائے یا پھر ملک سے معذرت کی جائے, تیسرا کوئی راستہ نہیں. دیکھیں, انڈیا کا الیکشن کمیشن ایک بڑا خود مختار اور طاقتور ادارہ ہے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں کر رہی ہیں. میں نے سابق چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر شہاب الدین یعقوب قریشی سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. 15 سال پہلے تو یہ سوال نہیں ہوتا تھا, 25 سال پہلے تو یہ سوال نہیں ہوتا تھا. آج ہی کیوں سوال الیکشن کمیشن پہ اٹھایا جا رہا ہے؟ تو obviously the fact is کہ لوگوں کے مائنڈ میں, ذہن میں کچھ فکر ہے, سوال ہیں, وہ اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن کی امیج پہ آج کل بہت بڑا کوشچن مارک ہوا ہے. آف کورس آدھے لوگ ان کو فیور میں بھی ہوں گے اور آدھے ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. دونوں قسم کی اوپینین ہیں. یہ بھی الزام ہے کہ الیکشن کمیشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اپنے کسی بھی چیزوں کے بارے میں بتاتا نہیں, کیا سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے, کیا ڈیٹا ہے. ایون ووٹر لسٹ بھی جو ہے وہ ڈیجیٹلی جو ہے ریڈیبل نہیں ہوتی ہے, اس طرح سے چھاپی جا رہی ہیں. دیکھیے, یہ ساری ایکسرسائز شروع کی گئی تھی کہ فورنرز کو اس کے ذریعے ہم پکڑیں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے. آج تک الیکشن کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ بہار میں 8 کروڑ لوگوں کو دوڑایا, اس کے بعد اس میں سے فورنر کتنے پائے گئے.
पूरे देश में अब तक कितने फॉरेनर पाए गए बताइए, उन्होंने फिगर दिए है कि नहीं दिए है? अभी तक नहीं दिए। तो ये क्या चीज़, ना उस पर पूछने वाला कोई बचा है। मीडिया भी की भी जो हालत है वो भी अफसोसनाक है, उन्होंने भी किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई सबसे पहले ये तो बताओ जिस वजह से तुमने एक्सरसाइज शुरू की थी। हमने मीडिया पे पढ़ा कि बिहार में 8 करोड़ लोग दौड़ाए गए और 500 फॉरेनर पाए गए। जो अब मीडिया में पढ़ा था, अगर ये गलत है सही है तो बताए, इलेक्शन कमीशन खुद ही बोले। 150 उसमें बांग्लादेशी थे, 350 नेपाल की हिंदू औरतें थीं जो शादी करके बिहार में आई थी। अब 150 लोगों के लिए आप 8 करोड़ को दौड़ा रहा है, उनको पकड़ने के और 10 तरीके थे। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का लफ्ज़ तो ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कानून में है, ना किसी रूल में है। ये इन्होंने अपने आप इसकी इख्तिरा कर ली। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि कुछ ही दिन पहले इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कराई गई वोटर फहरिस्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये अमल ना तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और उसके तहत बनाए गए कवायद से डायरेक्टली मुतसादिम है और ना ही ये आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के आईनी तकाज़ों को कमज़ोर करता है। अदालत उज़्मा के मुताबिक इस खुसूसी नज़रसानी का मकसद इंतखाबी अमल की शफ़ाफियत को यकीनी बनाना है ताकि जिस वोटर फहरिस्त की बुनियाद पर इंतखाबात मुनक़्क़िद होते हैं वो दुरुस्त, काबिल एतमाद और हकीकत के मुताबिक हो। इंडिया में इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी बारे में मैंने दिल्ली में तज्ज़ियाकार और इलेक्टोरल प्रोसेस की माहिर शुभ्रा आस्था से बात की और पूछा कि ऑपोजिशन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत के इक़दामात से जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, क्या वाकई ऐसा है? सबसे आसान तरीका है कि आप संवैधानिक प्रोसीजर्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स पे आप सवाल उठा दें और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे जनता का विश्वास किसी न किसी तरीके से कम हो। और ये हो नहीं रहा है क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकार में कमियां नहीं है या सरकारी प्रोसेसेस में कमियां नहीं है, होंगी, लेकिन उसके बरस का आप एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दें कि इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन ठीक से काम कर नहीं रहा। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअली लेजी लगता है मुझे। आपने SIR की बात की, तो जो वो सारी कंट्रोवर्सी है कि आप वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम इस तरह का लग रहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर आप करोड़ों लोगों को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस से अलग कर रहे हैं। अगर ये सच है तो इस तरह तो डेमोक्रेसी या जमहूरियत की जो जड़ें हैं वो मतलब कमज़ोर हो जाएंगी ना, क्योंकि आप प्रोसेस को ही शक में डाल रहे हैं, उसी को डाउटफुल बना रहे हैं आप। बिल्कुल आलिया जी, ये जड़ें कमज़ोर नहीं होंगी, लोकतंत्र रहेगा नहीं। और चूंकि लोकतंत्र है, इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ कि इतने प्रदेशों में चुनाव हुए अभी, किसी भी जगह आपने जनता को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते और वायलेंट प्रोटेस्ट करते नहीं देखा होगा। जिस भाषा में विपक्ष बात कर रहा है, जिन लोगों के ऊपर विपक्ष जिनके कंधे पर चढ़कर वो राजनीति करना चाह रहा है, वो जनादेश गायब है, सड़कों से गायब है। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले तक तकरीबन 30 लाख वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने SIR को चैलेंज कर रखा था कोर्ट्स में। तो पब्लिक लेवल पे एक डिसकंटेंट तो हमें नज़र आ रहा है, शायद सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अदालती प्रोसेसेस में तो नज़र आ रहा है। अदालती प्रोसेसेस में अगर वो नज़र आ रहा है तो मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि आगे चल करके जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुआ वो वापस एनफ्रेंचाइज होंगे, क्योंकि ये परमानेंट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की तो बात है ही नहीं। इसमें हमें 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है। इलेक्शन कमीशन को अगर ऐसा लगता है कि कुछ नागरिक ऐसे हैं जो वोट देने लायक नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इत्तला कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से निर्णय ले सकती है। बात रही आपने स्पेसिफिकली बंगाल की बात की, तो बंगाल में अगेन ये डेटा एनालिटिक्स के बाद पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस ये हो चुकी है कि अगर जितने लोग हैं अगर उन सबने वोट डाला भी होता तो भी ममता बनर्जी की सरकार दोबारा नहीं बनने वाली थी। बार बार ये जो प्रश्न उठता है कि ठीक इलेक्शन के पहले ये क्यों किया जाता है, ये वाजिब प्रश्न है अपोजिशन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर SIR किस तरीके से हो इसको लेकर के पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए।
دیکھیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں وفاقی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی پچھلی 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں ہے، لیکن اگر آپ انڈیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت صرف دلی میں نہیں بلکہ حالیہ ریاستی انتخابات کے بعد انڈیا کی 28 ریاستوں میں سے 22 میں یا تو بی جے پی کی حکومت ہے یا پھر بی جے پی حکمران اتحاد کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ 8 فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ یونین ٹیریٹریز میں بھی بی جے پی اقتدار میں ہے۔ 2014 میں جب بی جے پی پہلی بار اقتدار میں آئی تھی، اس وقت بی جے پی صرف 7 ریاستوں میں برسر اقتدار تھی۔ دوسری طرف کانگریس اور اس کے اتحادی اسی عرصے کے دوران 14 ریاستوں کی حکومت سے صرف 6 ریاستوں تک محدود ہو گئے ہیں، اور علاقائی اور دیگر جماعتوں کی تعداد بھی 7 سے کم ہو کر محض 3 رہ گئی ہے۔ یعنی پچھلے 10-12 برس میں بی جے پی نے اپنی طاقت کو بہت مہارت سے کنسالیڈیٹ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ تو واضح ہے کہ بی جے پی کی پالیسیز کو براڈلی سپیکنگ انڈیا میں مقبولیت حاصل ہے، اور اتنے عرصے سے اقتدار میں ہونے کے باوجود ان کی پاپولیرٹی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبصرین کے مطابق بی جے پی نے اپنا ووٹ بینک مضبوط بنانے کے لیے نہایت ہی تیز اور لچکدار حکمت عملی اختیار کی، جس نے اس کی سیاسی برتری کو مزید مستحکم کر دیا۔ مثال کے طور پر تجزیہ کاروں کے مطابق 2023 میں حلقہ بندیوں میں رد و بدل کے ذریعے بی جے پی نے آسام میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط بنائی، حالانکہ وہاں اس کی جیت پہلے ہی متوقع تھی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈین سیاست اور بی جے پی کے ارتقاء پر نظر رکھنے والے کچھ ماہرین یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ انڈیا ایک ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے، جہاں مجموعی طور پر اقتدار صرف ایک جماعت کے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا، کیونکہ جن پردیشوں میں بی جے پی کی سرکاریں بنی ہیں، بہت مشکل پردیشوں میں بی جے پی کی سرکاریں بنی ہیں، مشکل مطلب بی جے پی کے لحاظ سے مشکل پردیشوں میں بنی ہیں، وہاں پر ریجنل جو پارٹیز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں، انہوں نے ریجنل نیریٹو بہت سٹرونگ دیا ہے۔ آپ حال میں جو چناؤ ہوئے، آپ تمل ناڈو کا اداہرن لیجئے، تمل ناڈو میں جو سرکار بنی، کسی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے کی سرکار بنے گی، اور ایسا ہی آپ کیرل میں دیکھیں، کیرل میں بی جے پی کی سرکار نہیں، اور یہ وہ سارے اسٹیٹس ہیں جہاں سے ایک بہت سٹرونگ اینٹی بی جے پی نیریٹو آتا ہے، اور آنا چاہیے، جمہوریت کے حق میں ہے کہ وہ نیریٹوز بہت سٹرونگ آئیں۔ لیکن ہاں، آپ اگر اتر بھارت کی بات کریں گی، ویسٹ اور ایسٹ، پورو اور پشچم بھارت کی بات کریں گی، تو وہاں پر ابھی بی جے پی کا بول بالا ہے، اور اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا کے جو اسٹرینتھس ہیں اس سے زیادہ اپوزیشن کی ویکنیسز ہیں۔ آپ نے ان ایشوز پہ کام ہی نہیں کیا جن ایشوز کے بیسس پر آپ نے میڈیا میں، چاہے وہ راشٹریہ ہو یا وہ انترراشٹریہ ہو، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، آپ نے ایک بہت بڑا مدعا بنانے کا پریاس کیا، بہت بڑا مدعا بنایا بھی، لیکن گراؤنڈ پہ اس کا کریانوین نہیں ہوا۔ My question is, why are you letting BJP become hegemonic? Where is your credible opposition? اچھا، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیسے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ جی ہیں، جو انہوں نے ایس آئی آر کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ الیکٹورل رول کو پیوریفائی کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے مطابق جو انڈیا میں کرٹیسزم ہے، جو ناقدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیسکلی جو مسلمان آبادی ہے اور وہ لوگ جو بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے، یہ ان کو الیکٹورل رول سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ ان کا انومان ہے، کیونکہ ڈیٹا کہیں سے بھی ان کی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے نام الیکٹورل رول سے نکالے گئے، وہ کیول، میں بہت ڈائریکٹلی بول دیتی ہوں، وہ کیول مسلمان نہیں تھے، کافی بڑی سنکھیا میں ہندو آبادی تھی جن کا نام ووٹر لسٹ سے ہٹا، کیونکہ ہمیں اگر ہم بنگال پر دوبارہ اگر واپس آئیں تو بنگال، اسم ایسے پرانت ہیں، بھارت کے ایسے پردیش ہیں جہاں پر مائیگریشن کا سوال ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ویدھ اور اویدھ مائیگریشن کو لے کر کے ہر الیکشن در الیکشن وہ نیریٹیوز آج سے نہیں، وہ 1950-60 کی دشک سے بنا آ رہا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ملک میں حکومت مخالف آوازیں شاید کم ہو گئی ہوں، لیکن ختم نہیں ہوئیں۔ سیاسی سطح پر پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ سول سوسائٹی، صحافی اور مبصرین اس نئی ابھرتی سیاسی شکل کو چیلنج کر رہے ہیں۔ انفیکٹ کئی لیگل چیلنجز بھی ہیں۔ دیکھیں، انڈیا میں اپوزیشن پارٹیز اس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں کہ انتخابات سے اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ اس صورتحال کا قانونی طور پر بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ کتنا اہم ہے؟
इलेक्शन कमीशन के वोटर्स रिवीजन के अमल को अदालतों में भी चैलेंज किया गया था और आप तो जानती हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इलेक्शन कमीशन के सारे अमल को सही ठहराया है। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एक सरकर्दा वकील और प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं। मैंने उनसे पूछा कि कानूनी तौर पर अब उनके सामने क्या रास्ता बचा है। क्या होगा, उनका नाम कटे रहेंगे और ये लोग बोलेंगे कि भाई इनका ट्राइब्यूनल तय करेगा। ट्राइब्यूनल तो अगले 5 साल तक बंगाल का भी नहीं तय कर पाएगा। कायदे से अगर किया जाए 27 लाख केसेस, अब हमारे किसी भी हाई कोर्ट में देख लीजिए कितने केस पेंडिंग होते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना टाइम लगता है। एवरेज 10 साल 12 साल लगते हैं एक एक केस को तय होने में। वही होगा। रेगुलर इलेक्शंस किसी भी फंक्शनिंग जमहूरी निज़ाम का सबसे अहम जुज़ होते हैं, ये बात तो वाज़ेह है। लेकिन ये भी अहम होता है कि आम शहरी और हर शहरी ख़ुद को उस इंतखाबी अमल का हिस्सा समझता है या नहीं। ये भी सच है कि ऑलमोस्ट हर जमहूरियत में इंतखाबी अमल में खामियों, मसाइल और तासुब के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर किसी मुआशरे में कुछ तबकों को ऐसा लगने लगे कि उन्हें इस अमल से अलग किया जा रहा है, फिर चाहे वो इंतज़ामी रुकावटों की वजह से हो, इदारों में अदम एतमाद की वजह से हो या फिर तासुब के तासुर की वजह से, इससे पूरा निज़ाम कमज़ोर पड़ सकता है। देखिए, इंडिया के वसी हिस्सों में बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत एक हकीकत है। उनकी पॉलिसीज़, उनकी शख्सियत आबादी के बड़े हिस्से के साथ रेजोनेट कर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्टिव है कि उसने वफाक के साथ साथ रियासती लेवल पर भी अपनी ताकत को कंसोलिडेट किया है। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ आबादी के बज़ाहिर बढ़ते हुए हिस्सों में बेचैनी और जमहूरी अमल के हवाले से तशवीश भी बढ़ रही है। अगर आज 31 मई की रात आसमान साफ हुआ तो आपको एक गैर मामूली फलकियाती मंजर देखने को मिल सकता है। चांद पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ नजर आएगा और दिलचस्प बात यह है कि ये मई के महीने का दूसरा मुकम्मल चांद होगा, जिसे आमतौर पर ब्लू मून कहा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद चांद का रंग नीला होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरहकीकत ब्लू मून एक सकाफती इस्तिलाह है जो किसी नायाब वाक़े के लिए इस्तेमाल की जाती है। चांद को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने और दोबारा मुकम्मल चांद बनने में औसतन 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। चूँकि मई 31 दिनों पर मुश्तमिल है और इस महीने का पहला मुकम्मल चांद 1 मई को आया था, इसलिए महीने के आखिरी दिन दूसरा मुकम्मल चांद भी नज़र आ रहा है। इसी नायाब वाक़े को जदीद फलकियाती रिवायत में ब्लू मून कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज का ब्लू मून एक माइक्रो मून भी होगा, क्योंकि उस वक्त चांद ज़मीन से अपने निस्बतन दूर तरीन मुकाम पर मौजूद होगा। इस वजह से वो मामूल के मुकम्मल चांद के मुकाबले में कुछ छोटा दिखाई दे सकता है, अगरचे आम आँख से ये फ़र्क महसूस करना मुश्किल होगा। माहिरीन के मुताबिक ब्लू मून कोई अलग फलकियाती मजहर नहीं, बल्कि एक सकाफती और कैलेंडरी तस्वुर है जो वक्त के साथ साथ इतना मकबूल हो गया कि आज एक ही महीने में आने वाले दूसरे मुकम्मल चांद को दुनिया भर में ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। लिहाजा अगर आज रात आसमान साफ हो तो चंद लम्हों के लिए आसमान की तरफ ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वो मंजर है जो रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 200 रन बनाए, तमाम पूरी टीम 44वें ओवर में आउट हो गई। पाकिस्तान ने बज़ाहिर आसान हदफ का ताक़ुब शुरू किया तो इब्तिदाई विकेटें जल्द गिर गई, मगर इसके बाद बाबर आजम और गाजी गौरी ने तीसरी विकेट के लिए 127 रन की अहम शराकत कायम करके टीम को संभाला दिया। बाबर आजम ने 69 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, जबकि गाजी गौरी ने 65 रन बनाकर टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेज़बान टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इब्तिदा से ही पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम की बैटिंग लाइन आर्ड को दबाव में रखा। मैच के इब्तिदाई ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने कदरे मोहतात अंदाज में इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन जल्दी पाकिस्तानी स्पिनर्स ने मैच का रुख अपनी जानिब मोड़ दिया। पाकिस्तान की जानिब से खास तौर पर स्पिन बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर को मुश्किलात में डाले रखा।
इरफात मिन्हास को उनकी शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, जिन्होंने न सिर्फ 5 विकेटें हासिल की बल्कि आखिर में नॉट आउट रहते हुए 18 रन भी बनाए। मैच का असल मोड़ इससे कबल उस वक्त आया जब नौजवान स्पिनर इरफात मिन्हास ने अपने एक रोजा डेब्यू पर शानदार बॉलिंग करते हुए 32 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को बिखेर दिया। इरफात मिन्हास को उनकी शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, जिन्होंने न सिर्फ 5 विकेटें हासिल की बल्कि आखिर में नॉट आउट भी रहे और 18 रन भी बनाए। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। फ्रांस भर में फुटबॉल के शायकीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के नतीजे में 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये सूरत हाल पेरिस सेंट जर्मैन यानी PSG की जानिब से चैंपियंस लीग फाइनल में आर्सेनल के खिलाफ फतह के बाद पैदा हुई है। दारुल-हुकूमत पेरिस में बदअमनी को काबू में रखने के लिए हजारों एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसके बाइस बस, ट्रेन और रेल सर्विसेज में खलल पड़ा है। कई मुकामात पर आतिशबाजी की गई, जबकि झड़पों में कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। शहर के मरकज में हुजूम को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता साल भी जब PSG ने यही ट्रॉफी जीती तो इस नौयत का तशद्दुद देखने में आया था। इस बार वज़ीर दाखिला के मुताबिक हुकाम बेहतर तौर पर तैयार थे और उनके पास बहुत मजबूत इंतहाई मुस्तहकम निज़ाम मौजूद था। फ्रांस की अलामती शानसेली से सड़क पर फ्रांसीसी टीम की पेनल्टी शॉट आउट में जीत के फौरन बाद शायकीन का हुजूम उमड़ आया।